So should we start or wait? Just last 1 minute more. Let's start. First of all, suppose this is institute answer for the mock A. For the mock A, we are not reading anything, just that institute presentation of answer. The task 1, if it is a mail, the mail format. Then after the mail, there is an introduction, what is covered here. And then the first part answer is explained. How the answer is explained? It's just there is a heading. And under the heading, they are making different paragraphs. No bullet point, no 1, 2, 3, no ABCD, nothing. And not this. Every model answer. Every model answer, this is the presentation. And again there is a heading, some paragraphs. Again there is heading, some paragraphs. Again there is a heading, some paragraphs. Then the second part of the question, they are putting a heading. They are not writing again the question fully. They are just writing what is to be covered in the second part as a heading. Under the heading, they are making some headings and they are writing different paragraphs. This is continuously when core area A, B, C, D, E, mock A. In every time, they are presenting the answers like this. And since we are giving exam, we need to follow whatever the institute is saying. That's the institute presentation, always. The second thing, normally the answers are very lengthy. In 45 minutes, according to me, my understanding, nobody can write this much. Nobody. This is not that they are expecting that you can write this level of answer. Obviously, we can write even 50% of that we can pass. And the length is double than what you can write in the exam. So this is for teaching purpose, the answers are uploaded. For teaching purpose, the institute is saying that this is the 360-degree thought process. But still many times we find that there are some points which are not in the model answer, but still we are thinking in the right direction. For that reason, institute has written everywhere. This is not the only answer. This is not the only relevant points. If the student is writing something else which is relevant, then they will be given marks and they will be given credit for their write-up. That the institute, and institute is not receiving any challenge. You will say that this answer is not correct, this should be written like this and that. They are not accepting any challenge from anybody. These are for CIMA students, the model answers developed by the institute, and that model answers are suggestion by the institute. This way the presentation should be done. Now if we go in our classes answer, suppose Suparna's answer. She has written the mail format, then she is mentioning part A. Even institute is not mentioning. Institute is saying that just you put heading and then you start writing. Different paragraphs you have written, Suparna. Then for part B, they are normally not writing in the answer part B. They are just putting the heading. But there is no problem, even though you are writing part B. That is not a problem. And then you have put the paragraph-wise structure. Now suppose we go into Preetham answer. Preetham is writing the question again. Maybe in class we can copy paste, but in exam you cannot copy paste. So if you want to type the question, that will be wasting your time. You should not be doing that. Because in exam the screen of question and the screen of answer will be different. And from the screen of question you cannot copy and paste in the answer sheet. You can't. So again and again you need to go in the screen, read the question, then in the answer sheet just puts heading. Okay? No problem.
then the mail structure, then the paragraph structure, different paragraphs are written, then the second part should not be written the full question, only the heading, that is the second part, and then we put the answers in paragraph format. ठीक है? Now the third answer, Tajamul ji answer. All these things maybe you are writing, but that you will not get the opportunity to write that in the exam, because आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि क्वेश्चन को आप टाइप करो, टाइम तो वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए चलते हैं. Then you started writing. Now this 1, 2, 3, 4, one line, and then you were saying that the conclusion again 1 or 2 lines. Then you were saying it is not a proper structure. When you were saying something here in this point, आप इस पॉइंट में कुछ बोल रहे हैं, आप नीचे इसके बारे में जो लिख रहे हैं यहीं लिखिए. Whether you put 1 number or 2 number doesn't matter, but it is not a proper presentation since beginning. That means why? We are not looking at the model answer at all. I will, in second number question, again same story. Again just the points are written, that's gone. This is not the proper presentation. You may be thinking I have written 8 points, but institute is saying that you have not written a single point. You have not explained a single point properly, so marks will be less. Maybe we will not be scoring the pass marks in exam. Again, suppose I will go into Ritankar answer. Ritankar, mail format, paragraph is going on. Now after the paragraph, Ritankar is writing this way bullet points. This way bullet points. And after in the bullet points he is writing pure technical thing. And then in one single paragraph he has written all the explanation, which is not again a proper presentation. Whatever you want to communicate relating to this is relevant to point number 1 or 2 or 3, cover that only. Give examples. So the presentation is not good. The presentation will reduce our marks in exam. Again here, 3-4 lines technical write-up, then one single paragraph about that. You need to correlate your technicality with the case study, with the pre-scene, with your examples. Use the point fully, whatever you want to say. So the presentation on nutshell of Tajamul and Ritankar is not appropriate. Second thing. Suppose in case of Suparna. ये सुपर्णा का आंसर है. In the last question, Suparna got out of 25 marks, 6 marks only. क्यों? Why you got only 6 marks? We have done the benchmarking question earlier also in the core area. That means at that time, maybe suppose we have read from somewhere benchmarking and all that, and then we have written the answers, but we don't know the logic. And the problem is that if it is wrong write-up, marks will not be allotted. Internal benchmarking means what? Ki in my organization, there is a CIMA batch, there is an ACCA batch, there is a CMA batch, there is a IFRS batch. All batches are there. Can I compare the performance of the student of CIMA with the performance of ECCA or CPA? I can't. Because CIMA syllabus is different, question pattern is different, ACCA or CPA syllabus is different, question pattern is different. Maybe the areas are common, but the question pattern is different. The way they are asking the questions, the way the answer need to be written is different. I cannot do internal benchmarking in my organization in respect of different batches. But suppose if I am talking about my staff, those who are working, somebody is handling management accounting courses leads, suppose CIMA, CMA, somebody is handling chartered accountancy courses leads, suppose ACCAs, CPA and all that. Now, I want to compare both they are internal. मेरे को बाहर से कोई data नहीं लेना है. They are working in my organization. I need to compare their performance कि कौन बढ़िया कर रहा है. So suppose the CIMA, the management accounting course counselor who is dealing with the management accounting leads. Suppose he is getting in a day 10 leads. But the CPA, ACCA person is getting 25 leads. I will say that the CIMA counselor or CIMA person is not doing good. No sir. Leads जितना आएगा उससे ही बात करेंगे ना. जबरदस्ती पैदा कैसे कर देंगे leads को? I need to check on the
proper background ki whether I can compare both the performance, whether I can make my ACCA performance, if it is good, then the CIMA or CMA performance would be like that. For internal purpose, you don't need to gather information from outside. You have your internal information. हम लोग का बहुत सारा होटल्स है, डिफरेंट प्लेसेस में है, सब होटल्स बहुत सारा कॉमन तरह का है. हम लोग के बहुत सारी सेल्स ऑफिसेस है जहां पर स्टाफ लोग फिजिकल वे में कस्टमर्स लोग सर्विस दे रहे हैं. वी कैन कंपेयर देम ऑन आवर इंटरनल ग्राउंड्स, इंटरनल डेटा. इसमें बाहर का बात कहां से आ गया? Few companies have taken the online business. It is going totally haywire. So if we do this type of blunder mistake, then examiner is not going to give marks. Reason being that it's not a question of technicality. It's a question that under the heading, maybe the heading is correct, but we are not writing appropriate stuff, which can give any credit of marks, तो पूरा marks चला गया. इसका मतलब ये भी है कि जब हम लोग पहले बेंच मार्किंग का क्वेश्चंस किए, उस समय हम लोग रिसर्च करके कर रहे थे, हम लोग उस समय ठीक से उस पर ध्यान नहीं दी. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ये क्लास खत्म हो गया, मान लीजिए आपने आंसर लिख दिया. अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई विल आस्क तजामुल, आर यू रीडिंग द मॉडल आंसर्स आफ्टर राइटिंग? नॉट मॉडल मीन्स नॉट any student answer. Are you reading the model answers once you submit the answers and I share model answers? Be genuine. Yes, sir. Yeah. And I took out my weaknesses. Yeah. But then why you are not improving, sir? Why you are continuously writing the answers in this format, sir? When you will say that I am looking at that, then you are looking continuously that the model answers are not writing in this format the answers. But you are writing always in this format only. Then to in that case, that means you are not looking properly at the model answers. Think logically. क्योंकि हम लोग को we need to do what the institute is saying. Then only we can score marks. तो presentation wise, Preetham and Suparna is okay. You both are presentation wise in the wrong direction. Maybe you will say that कि suppose you got out of 50 marks 24 marks, because ठीक है क्वेश्चन में कवर्ड है, एरिया कवर्ड है, बट हम लोग 2-4 नंबर बिकॉज ऑफ प्रोफेशनलिज्म गंवा रहे हैं. वी आर लूजिंग दैट मार्क्स विच वी कैन गेट इजिली. और जब आप कुछ गलती करते हैं, मान लीजिए आपको फीडबैक दिया गया या आपने कुछ गलती किया, आप उस चीज को फिर से जब कर रहे हैं, जैसे मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास कि व्हेन यू विल सबमिट द आंसर, then I will share the model answers with you. I will not wait that others are submitting or not. I will give you at that time only. Then you will read the model answers and then you will analyze what are your weak areas. आप उसको एनालाइज करोगे, उसको पढ़ के मॉडल आंसर्स को, कि मेरे को कहां पर तकलीफ है, क्या उसके ऊपर मेरे को रिसर्च करना है, क्या उसके ऊपर मेरे को अपडेट करना है, कौन सा वीडियो देखना है, क्या नोट्स पढ़ना है. मॉडल आंसर्स पढ़ के आपको अपना वीक एरियाज पता चलता है. जब आप वो वीक एरियाज के ऊपर वर्क करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ऐसा भी हो सकता है कि वी कैन से दैट कि ये जो मॉडल आंसर्स ये वाला है, मान लीजिए ये आपका आंसर है, आपने मॉडल आंसर पढ़ा, उसके बाद आपको लगता है कि ये मेरे को फिर से लिखना चाहिए, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, फॉर योरसेल्फ, देन यू राइट दिस आंसर अगेन. एक क्वेश्चन पेपर को करने का मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर दिया हो गया, उसके ऊपर और 5-6 घंटे का काम बाकी है. When you did the solution, maybe you have done very well, but still you need to see the model answer, critically analyze, critically see where you need to improve, critically see what are the areas where I was not able to write a proper way, I was facing problem. मेरे को वो भी ध्यान देना है, उनको कवर अप करना है. एक पेपर के ऊपर आपका 4 से 5 दिन जाना चाहिए. आपने एक पेपर के ऊपर आंसर लिखा, मॉडर्न आंसर पढ़ा, जो वीक एरियाज है उनको इंप्रूव किया, उसके बाद आप दूसरे मॉक पेपर पे गए. ऐसा थोड़ी ना कि हर दिन एक मॉक करते जाएंगे, देन तो कोई फायदा नहीं है. इफ यू आर नॉट इंप्रूविंग ऑन वन आंसर जब लिखे हैं दूसरी बार, तो फिर कैसे होएगा? इंप्रूवमेंट तो दिखना चाहिए ना. द थर्ड थिंग, व्हेन वी आर राइटिंग आंसर, सपोज I mean to say, मान लीजिए this one, in this the third question, suppose the third question, this is task 3,
sorry, the task 3. In task 3, they are saying, firstly, as we have not investigated such an initiative before, please outline the key features of the project and especially any that may cause problem to us in Happywell and ways in which these problems may be addressed. सभी ने अच्छा लिखा है, खराब किसी से नहीं लिखा. बस प्रेजेंटेशन तजामुल और रितांकर का सही नहीं है, बिकॉज आप टेक्निकल पार्ट लिखे जा रहे हो, पॉइंट्स पे पॉइंट्स, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो और नीचे जाके कर रहे हो तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है. जब आप कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहे हो तो वहीं लिखो ना यार कि आपको ये डिपार्टमेंट से थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है. माने हम लोग डर रहे हैं कि हमें एग्जाम में पास होना है. एग्जाम में पास अपने आप हो जाएंगे इफ यू आर एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मेरा यहां इश्यू नहीं, ये आपने ठीक ही लिखा है, थोड़ा बेटर हो सकता है व्हेन यू रेफर ऑन योर वीक एरियाज. आइडेंटिफाई द इंपैक्ट दैट द सेल ऑफ some shops and the leasing out of other shops will have on the interpretation of the financial statement. Identify the impact that the sale of some of the shops and the leasing out of some other shops will have on the interpretation of the financial statements. Interpretation मतलब ratios, gross profit, net profit, turnover, asset turnover, whatever. फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन आप करिए. अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज, जो फाइनेंस लीज हम लोग एसेट्स दे रहे हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होएगा. अफेक्ट्स ऑन द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड अर्निंग्स पर शेयर. ये जो फाइनेंस लीज हम करेंगे उसका अफेक्ट हम लोग की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और अर्निंग्स पर शेयर्स पे क्या पड़ेगा. जब हम लोग फाइनेंस लीज में जाएंगे, so what will be the effect on the return on capital employed and earnings per share. आप सोचेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, गिरेगा, अर्निंग्स पर शेयर बढ़े, लेकिन आपका लॉजिक नहीं है. एग्जामिनर उस बढ़ने और गिरने पे कोई नंबर नहीं देने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर, सबको पता है रिटर्न डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न मीन्स कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड. तो अगर आप फाइनेंस लीज पे एसेट्स को देंगे तो क्या आपकी रिटर्न, क्या आपकी प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ेगा? क्या आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई चेंजेस आएगा? अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग फाइनेंस लीज पे एसेट्स देंगे तो फाइनेंस लीज पे देने से पीएल अकाउंट में केवल इंटरेस्ट इनकम आएगा और वो इंटरेस्ट इनकम भी ऑपरेटिंग इनकम के अंदर नहीं आता है. बिकॉज व्हेन वी डू द नॉर्मल फर्स्ट अकाउंटिंग क्लास, एसबीआर, एफआर, व्हाटएवर, देन फर्स्ट क्लास आई से द फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट. Sales, cost of goods sold, gross profit, admin, selling, operating income, then comes interest and all that. तो आपको अगर इंटरेस्ट इनकम होएगा भी, वो आपका ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, यानी कि न्यूमरेटर विल नॉट चेंज. इफ यू आर सेलिंग सम ऑफ द एसेट्स, जो कि यहां नहीं बोल रहा है फिर भी, तो सेल करने से जो एसेट्स, मान लीजिए आई एम सेलिंग माई कंप्यूटर, आई एम गेटिंग इनकम, बट वो इनकम इज नॉट माई ऑपरेशंस इनकम. माई बिजनेस इज नॉट सेलिंग कंप्यूटर्स. My operations income is what I am getting from the training classes. That is my operational income. If I am getting share market से कोई कंपनी का शेयर पे डिविडेंड, that is not my operational income. तो जब आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लीजिंग का, तो आपका ऑपरेटिंग इनकम पे कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं. नो चेंज इन दी ऑपरेटिंग इनकम. कोई चेंज अगर बोले, सो अर्लियर यू वेयर यूजिंग दी एसेट्स, शॉप्स इन योर बिजनेस, एंड नाउ द शॉप्स विल नॉट बी यूज्ड इन द बिजनेस. So normally there may not be any depreciation because the shops will be going from the balance sheet. That will be coming as net investment in the lease receivable. वैसे ही वो current assets में चला जाएगा. That will not be a part of non-current assets. So there will not be any depreciation, maintenance of the assets and all that. वो सब नहीं arise होएगा. यानी कि आपका थोड़ा सा ऑपरेटिंग इनकम बढ़ेगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन और ये सब नहीं होएगा. फिर उसके बाद डिनोमिनेटर कैपिटल एम्प्लॉयड. Capital employed is the amount invested in the business. This net investment in the leasing में जब assets को दे देंगे, that is not a part of capital employed. वो capital employed और नहीं है. That is, you can say, investment outside the business. That is not a part of capital employed. So earlier it is a part of capital employed. Now it will not. So there is a change in the numerator also, denominator also. Which effect will be higher? We can't say that exactly. Return on capital employed will go up or down.
आप अगर लॉजिक दे बगैर आप लिख भी रहे हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा घटेगा, कोई नंबर नहीं है। और आप अगर इलॉजिकल बात लिख रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, तो भी नंबर नहीं है। आपको इसका नंबर मिलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज, यू हैव रिटन सम कंडीशंस, दीज आर फाइनेंस लीज, आपने वो बताया नंबर, लेकिन इसका तो नंबर नहीं मिलेगा। एंड व्हेन द रिटर्न इज नॉट कांस्टेंट, तो अर्निंग्स कैसे कांस्टेंट होएगा? समबडी हैज रिटन कंपनी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज by giving assets on lease. How come the number of shares are changing? How come the share capital is changing? So how you are writing wrong? Don't write wrong thing. मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आया, उसने इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। मान लीजिए किसी ने लिख दिया बढ़ेगा घटेगा 2 लाइन, ठीक है, बट आप गलत नहीं लिखी, बिकॉज अर्निंग्स पर शेयर कंपनी का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। व्हेन वी आर गिविंग एसेट्स ऑन लीज, there is no change in the share capital, there is no change in the number of shares, only the numerator will change. If you understand logically slightly कि जब आप एसेट्स लीज पे देंगे इंटरेस्ट आएगा, एसेट्स लीज पे देंगे कोई इनकम आएगा, एसेट्स लीज पे देंगे डेप्रिसिएशन नहीं होएगा, मेंटेनेंस नहीं होएगा, थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट के बारे में बोलेंगे उसका नंबर मिलेगा। लेकिन आप बे लॉजिक से नहीं बोलेंगे नंबर नहीं मिलेगा। एग्जामिनर सब पढ़ के नंबर दे रहा है आपको, कोई ऐसे शॉर्टकट में नंबर नहीं डाल रहा है। You need to specifically focus what is asked in the question. आप उसका आंसर लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा, जबरदस्ती बढ़ा के फायदा नहीं। Third thing, as Preetham was saying that when I am knowing something, then I am not getting time to write that much. And suppose when I don't know something, then I am not able to complete that in time. That's the general query, because that problem must be facing. Suparna, anybody will face कि जो आता है उसमें मन बहुत करता है, लिख नहीं पाते हैं, और जो नहीं आता है सोच सोच के पागल हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल रूल है, यानी कि चेष्टा ये करनी है कि जितना हद तक हो सके। Sir, actually, thank you very much. The same like, sir, like for example, when I was looking this, so the practical impact, like the way in organization we are doing. So actually, one impact is it will increase the cash, the surplus cash. And second one is basically increase our receivables. So then I was thinking, how it will increase your receivables, sir? Lease receivable is not your business receivable, sir. Yes, sir, but in case of cash is already coming to the organization. And But then cash is coming to assets are going, na, sir. Whatever the from PP&E assets are going, yes. So what will be the net effect? If you say that the figures which are given 90 का assets जा रहा है और 110 आ रहा है, और मे बी नहीं आ रहा है, they will pay later. But फिर भी your assets are increasing by 110 and your assets are reducing by 90. So net effect on assets is only 20, sir. Whether they are giving cash, whether it is lease receivable, whatever. Somebody has written lessee का accounting. I don't know, चारों में से कोई एक जन lessee का accounting कहाँ पूछ लिया यहाँ? राइट टू यूज एसेट, डेप्रिसिएशन, ये सब कहां से लिखने लग गए? तो वो आप कुछ भी लिखेंगे उसका नंबर नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अभी इस बात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सपोज, बिकॉज डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग सम क्वेश्चन इन एग्जाम वेयर बोथ द पार्ट्स यू डोंट नो प्रॉपरली, मे बी वन ऑफ द पार्ट यू नो बेटर एंड द अदर पार्ट यू डोंट नो दैट मच। इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए इस पार्ट का मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया से आता है, then out of 45 minutes 10 minutes gone in reading and planning, so I will take out of 35 minutes 30 minutes in this. That's not advisable, because out of 60% you cannot get 90% marks. Maybe in play out of 35 minutes में से 60% के बदले you are taking 70% time for this. That is maximum. You are giving 10% extra time to this. But आपको जो समझ में आए, अब मान लीजिए आप बोलेंगे सर गलती लिखेंगे, गलती लिखना ही पड़ेगा, बट आप इसका आंसर को 2 लाइन लिख के नहीं आएंगे। When the allocation of marking is 60-40, that means the time allocation should also be 60-40. In 60% time, in the first part, whatever you can write, maybe 5%, 7% more, that's okay. But आप अपने आप को रोकिए, प्रोटेक्ट माने स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम राइटिंग बियॉन्ड द टाइम, बिकॉज नहीं तो इसमें आपको और कम समय मिलेगा। ऐसे भी आप ये जानते नहीं है, तो जो आप 2-4 लाइन यहां लिखेंगे वो सब गलती लिख देंगे आप एग्जाम में, तो आपको इसका पूरा का पूरा नंबर 0 मिल जाएगा, खत्म। बिकॉज यू डिडंट नो दिस एंड यू डिडंट गिव प्रॉपर टाइम ऑल्सो
तो भी समझ में नहीं आया तो आप लिख ही नहीं पाए। तो आपको जहां से, अब इसमें मान लीजिए सपोज देयर इज 25 मार्क्स क्वेश्चन, दिस इज 60%, 15 मार्क्स, तो मैं आपको बढ़िया से बढ़िया 15 में 10 12 उससे ज्यादा नहीं दूंगा। इट्स थ्योरी, 15 में 15 नहीं आएगा। मैं आपको 15 में 10 दे भी दिया और इधर लड्डू है, तो इन टोटल तो 25 makes you are getting only 10 marks. How you will pass the exam? Because the passing marks is out of 150, 53, 80, which is 53%. So out of 100, you need to score 53 to pass the exam. तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट के कारण एग्जाम का पेपर बर्बाद कर दिए। यू डिस्ट्रॉयड द पेपर। आप जो जानते हैं उसको 5-7% ज्यादा टाइम दे सकते, उससे ज्यादा नहीं। आप जो नहीं जानते वो भी लिख के आना पड़ेगा। मे बी सपोज आई एम क्वेश्चनिंग इन द क्लास कि भाई बेंच मार्किंग सुपर्ना रिटन रॉन्ग, और मे बी सपोज आप लोग यहां पर गलती लिखे, लेकिन लिखना तो बाई चांस सही हो जाता। तो इफ यू डोंट नो यू विल बी राइटिंग रॉन्ग, बट विदाउट राइटिंग यू कांट पास द एग्जाम। आपके पास एडिक्वेट टाइम होना जरूरी है। मे बी नॉट 60-40, मे बी 70-30 चलेगा यार। 30% टाइम इफ यू आर गेटिंग आउट ऑफ 35 मिनट्स, 10-11 मिनट्स कुछ तो लिखेंगे। जब एग्जाम में टाइम रहेगा नहीं ना, और जब आग लगेगी, अभी तो नहीं फील आता है, वो अपने आप सब लिखना आएगा, अपने आप ऑटोमेटिक। इन द एग्जाम इन्वायरमेंट द ब्रेन वर्क्स वेरी फास्ट, वेरी फोकस्ड। मान लीजिए क्लास में टेस्ट ले रहे हैं, वैसे ब्रेन फंक्शन नहीं करता। जब आप किसी चीज के बारे में शिद्दत से सोचते हैं तो आपका ब्रेन जोर से चलने लगता है। जब आपके दिमाग में 50 बातें चल रही हैं, लाइक सपोज Tajamul is thinking from Wednesday I will be going taking interview, this that, family में ये problem है, malaria. That means when you are sitting in home and you are giving exam, you are writing answers, there are 10,000 thoughts going in your mind. You are not able to focus. But exam में सबका focus अपने आप आ जाता है। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट बेहतर लिख पाता है जो क्लास में नहीं लिख पाता। बिकॉज टाइम का प्रेशर है ना। Once 45 minutes over, it will be submitted. आपके पास 1 सेकेंड भी नहीं होएगा कि आप और लिख पाओ। तो आप वो प्रेशर को फील करिए जितना हद तक हो सके क्लास में आंसर देने के टाइम पे। आई एम एज्यूमिंग एवरीबडी हैज रिटन ऑल द आंसर्स 45 मिनट्स ईच, बिकॉज मैंने तो बोला था अगर आप 45 के बदले 50, 55 आप एक साथ चारों आंसर नहीं दिए, 2 सुबह दे दिया, 2 शाम को लिखा, तो आप बात नहीं सुन रहे। वो तो मेरे को पता नहीं है ना। And when writing the answers, maybe you have referred something, then also you are not hearing. That I can't control. That are you doing within 3 hours? Are you taking each question 45 minutes? Are you not referring anything else? No chat GPT, Siraj ji. Because exam में तो कुछ देखने नहीं मिलेगा ना chat GPT मिलेगा, ना Google मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। तो जब मालूम है कि एग्जाम देना है तो एग्जाम के जैसे बिहेव करना पड़ेगा, वो आपके बिहेवियर में आना पड़ेगा। आपको अपने आप से जेन्युइन होना पड़ेगा कि आप कोई चीज खोलेंगे नहीं, आप पूरे 3 घंटा में लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन 45 मिनट्स में। मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों ने उस प्रिंसिपल को फॉलो किया है, वो तो मैं चेक नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके अलावा जो मेरे सामने प्रेजेंट हो रहा है, मैंने ये सब गलतियां पाई कि आप गलती कर रहे हैं। गलती मैं भी करूंगा, सब इंसान, बट उसके ऊपर वर्क तो करना होगा ना। व्हेन वी आर डूइंग मिस्टेक्स वी नीड टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स ना, सो दैट वी गेट अ बेटर रिजल्ट। माने एक मॉक पेपर दिए, ये सब गलती हुआ, दूसरे में उससे बढ़िया होना चाहिए, बिकॉज आप उसके बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव किए हो। तीसरा और बढ़िया होना चाहिए। ऐसे आगे जाते जाते फीलिंग तो वैसे डेवलप होना चाहिए ना, दैट आई कैन पास द एग्जाम। टाइम का प्रेशर ऐसा दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं है, नॉट सीमा। इफ यू से सीए स्टूडेंट गिव सो मेनी सीए सीएमए एग्जाम्स, जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं, कॉपी पेन बेस्ड एग्जाम है, आज भी है कॉपी पेन बेस्ड सीए में। जब स्टूडेंट बाहर निकलते हैं एग्जाम देकर, आप देखेंगे आधे से ज्यादा क्या बोलेंगे, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत लेंदी था। वेदर इट्स अकाउंट्स पेपर, वेदर इट्स कॉस्टिंग पेपर, वेदर इट्स लॉ, वेदर इट्स ऑडिट, वेदर इट्स टैक्स, बस एक ही बात है स्टूडेंट का, बहुत लेंदी था, कंप्लीट नहीं हुआ। जो लोग ये बाहर बोलकर निकलकर बोल रहे हैं बहुत लेंदी था, वो पास नहीं होंगे, बिकॉज आप पेपर कंप्लीट ही नहीं करेंगे, पास कैसे होंगे। अब जो बचा 40-50% जो लोग पेपर कंप्लीट करके आए, लेंदी उनके लिए भी था, बट दे कंप्लीटेड द पेपर, उसमें मोटा मोटी लोग पास होने लायक हैं, बिकॉज पेपर कंप्लीट वही कर सकता है जो ठीक से पढ़ के गया है। आपके केस में टेक्निकलिटी नहीं है,
थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर है, प्रैक्टिकलिटी है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप उसको प्रैक्टिकल वे में सोच नहीं पा रहे कि आप तजामुल, यू विल टेक इंटरव्यू ऑफ पर्संस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल आस्क, यू आर मेकिंग योरसेल्फ रेडी कि वेदर दे विल बी एबल टू गिव आउटकम इन योर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे विल बी हायर्ड। आपने बनाया होगा ना, मान लीजिए हम किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो हम तो सोच के रखेंगे ना उसको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, कितनी देर का इंटरव्यू होगा, क्या रिटन टेस्ट लेना है, क्या क्वेश्चन। आपका एग्जाम भी तो वही है कि कंपनी को मान लीजिए ऑनलाइन वेबसाइट बनाना है, ज्यादा करना है, शॉप को बंद करना है, नए लोगों को रखना है, क्या करना है वही करना है, व्हाट यू विल बी डूइंग इन द बिजनेस, द सेम थिंग। बट एग्जाम के टाइम पे हम वो प्रैक्टिकल बन नहीं पा रहे, हम टेंशन ले रहे हैं फेल हो जाएंगे, ये सब। पहले ये फेल का बात माथा खराब बंद करिए, फॉरगेट अबाउट फेल पास, इट्स एन एग्जाम विच इज प्रैक्टिकलिटी। सीए वाला लोग को ये सब नहीं पढ़ाया जाता, उनको तो बोलेगा बैलेंस शीट बनाओ, ये करो। एसीसीए के अंदर दोनों चीज है, बट इंडियन कोर्सेज का यही प्रॉब्लम है, दे आर मेकिंग द स्टूडेंट टेक्निकली बेटर बट प्रैक्टिकली नॉट बेटर। सीमा सोच रहा है भाई आपको पीएल बैलेंस शीट बनवा के क्या सीखेंगे, जब आप कोई प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, ऐसे क्यों करना है, इससे पीएल अकाउंट बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा, आप वो नहीं बोल सकते, तो फिर इन दैट केस तो जूनियर पर्सन है, फिर फाइनेंस मैनेजर, सीनियर फाइनेंस मैनेजर, सीईओ, सीएफओ नहीं बन सकते, बिकॉज देन तो वी आर ऑपरेशनल टाइप ऑफ पर्सन, वी कैन डू जर्नल एंट्रीज, वी कैन पास लेजर्स, वी कैन रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन ट्रायल। वो तो बच्चा लोग करता है, वो हमारा काम थोड़ी ना है, हमें तो उनसे काम करवाना है, हमें तो उनको गलतियों के ऊपर ठीक करना है, दैट्स आवर जॉब। सीमा वैसे ही पूछ रहा है, आपको कोई भी जगह कोई क्वेश्चन में कोई बैलेंस शीट, पीएल वगैरह, कोई कैलकुलेटर काम ही नहीं है। You need to write the answers with a practical bent of mind. पैराग्राफ स्ट्रक्चर, वेदर यू पॉइंट पैराग्राफ 1 2 वो लोग तो नहीं देते, आप दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 20 लाइन लिख दिए, 20 पॉइंट, फिर नीचे 2 पैराग्राफ, वो प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट का नहीं है। तो हम लोग अगर आंसर पढ़ रहे हैं तजामुल, देन व्हाट वी आर डूइंग मैन, वी नीड टू रीड ना व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग, हाउ दे आर प्रेजेंटिंग। When I saw these mock answers, it is not that much difficult. All the practical steps we Yes. are indirectly doing. तो then But unfortunately, we are not adopting that practice. so we need to, now we need to adopt, sir. Now at least now we need to adopt. Okay, when you are writing a technical point, you know that when you are using that technical language, why not you apply that technical language to practicality also? When you are saying that we need to communicate with our department staff and all that, अरे भाई ये तो सभी जानते हैं, आप कोई सिनेरियो पढ़ रहे हैं, किससे कम्युनिकेट करना है, किसको करना है, क्या बोलना है। आई विल से इन दिस केस प्रीतम इज वेरी गुड, वो एकदम प्रैक्टिकल वे में सोच के चीजें लिख रहे हैं, सुपर्णा भी अच्छा लिख रही है, लेकिन आप लोग दोनों को थोड़ा इंप्रूव करना है, रितांकर एंड तजामुल, बिकॉज दैट प्रैक्टिकलिटी यू अंडरस्टैंड दैट कि सपोज यू आर राइटिंग एन आंसर एंड मे बी योर वाइफ, मे बी योर कोलीग, मे बी समबडी योर फ्रेंड, फॉरगेट अबाउट मी, you give your answer to that person कि भाई this is a question, maybe technically, because technical तो कुछ है ही नहीं ना, maybe project management something, you tell him read my answer, and then you tell him read the model answer, or then you tell him to read Suparna answer, read Preetham answer, anybody else, and then ask him, because maybe when you are reading your answer you are biased, human beings are biased, I will always say I am the best, दुनिया का यही नियम है यार, but I am good or bad, that you all will be saying. How can I say about myself? Human beings are always biased about themselves, about their family members, about the whom they know. लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन को जब दिखाएंगे तो आपको दिखेगा वो क्या बोल रहे हैं। अब उस इंडिपेंडेंट पर्सन के पास टाइम भी होना चाहिए आपका रीडिंग करने का, मॉडल आंसर को रीड करने का, तब तो होएगा ना। लेकिन आप जब आंसर लिख देते हैं और उसके बाद जब मॉडल आंसर रीड करते हैं, किसी और का रीड करते हो, तो आपको एकदम इंडिपेंडेंट वे में चेक करना है, जैसे मैं रीड करता हूं वैसे, कि भाई आपने मॉडल आंसर या जो भी चीज पूछा उसको प्रॉपर एफर्ट्स, प्रॉपर चीज दिया क्या, आपको खुद ही समझ में आएगा मेरी यहां गलती है। जस्ट एन एग्जाम्पल, आई डोंट अंडरस्टैंड, टुमारो आई विल बी टेलिंग, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड द IFRS क्वेश्चन
the balance sheet PL account question in the class. We solved. First of all, so I said the adjustments, then I solved the question, then I gave my answer, screenshot in everything. Now he's saying that I have tried the exact same question which we solved in the class. If possible, please tell me the wrong steps. I am thinking that, suppose the balance sheet is not tallying. Suppose the goodwill figure is not tallying. That तो he can check where the mistakes are there. उनको तो ये पूछने का है ना, सर मेरा यहां पर नहीं समझ में आ रहा है. वो ये क्या पूछ रहे हैं यार. जब हम लोग क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिए, एडजस्टमेंट डिस्कस कर लिए, वो क्वेश्चन का मेरा सॉल्यूशन मैंने स्क्रीनशॉट के साथ दे दिया. अभी इसमें ये तो स्टूडेंट खुद ही देखेगा ना कि मेरा ये रॉन्ग है क्या. इन दिस गुडविल, इफ सपोज गुडविल फिगर इज रॉन्ग, विच फिगर इज रॉन्ग, दैट इज माई सॉल्यूशन इज ऑल्सो देयर इन द स्क्रीनशॉट. और अगर ये फिगर उनका रॉन्ग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये रॉन्ग फिगर क्यों है, ये तो उनको दिखेगा. मान लीजिए सपोज दिस फिगर इज रॉन्ग एंड ही इज थिंकिंग दैट दिस वुड कम, बट आई हैव रिटन समथिंग एल्स. देन ही नीड टू आस्क दैट वे व्हाई दिस इज कमिंग लाइक दिस. ऐसे तो अपने अगर 500 क्वेश्चन भी कर लेंगे कोई फायदा नहीं होएगा. वही गलती हम भी यहां कर रहे हैं कि वी आर राइटिंग द आंसर्स, वी आर रीडिंग द मॉडल आंसर्स, बट वेयर वी आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, where we are following what the institute is saying, what presentation they are doing, where we are doing that presentation. Why every time, so many times we are doing the repeating the same mistakes? That we need to check in our brain. कि अगर मान लीजिए बेंच मार्किंग है, हम लोग पहले पढ़ के रखे हैं, क्वेश्चंस था इंटरनल बेंच मार्किंग, एक्सटर्नल बेंच मार्किंग, कॉम्पिटिटिव बेंच मार्किंग था, लेकिन हम उसको गलत लिख रहे हैं. हम उसका इस प्रेजेंटेशन माने पूरा रॉन्ग लिख रहे हैं. इसका मतलब हमको ध्यान देना है ना कि मेरे को बेंच मार्किंग नहीं आता है, उसको फिर से लिखना है. उसमें कोई हाथी घोड़ा तो है नहीं. कॉम्पिटिटिव बेंच मार्किंग क्या है? कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना. यहां पर भी वी हैव टू कलेक्ट डेटा बेस्ड ऑन रिसर्च एंड whom do we want to compete. Here we can do the internal compete. ये इंटरनल कहां से आ गया? जो इंटरनल में लिखना है वो हम लोग कॉम्पिटिटिव में लिख रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव में लिखना है वो उधर लिख रहे हैं. दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट आर नॉट क्लियर. तो अगर कहीं पर भी आप मॉडल आंसर पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और आपका पूरा गलती है, देन आपको वहां ध्यान देना है, मेरे को ये चीज इंप्रूव करनी, नहीं समझ में आ रहा है, पूछेंगे. बट ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखकर क्या होएगा? हम तो कल उनके सामने बोलेगा, व्हाट यू वांट मी टू चेक, डू यू वांट टू चेक गुडविल फिगर इज करेक्ट और नॉट? देन व्हाट यू हैव डन मैन, आफ्टर राइटिंग द आंसर, इफ यू आर नॉट चेकिंग विद द मॉडल आंसर, तो आपका पढ़ाई करने का टाइम पूरा बर्बाद हो गया. आप आंसर लिख दिए, मेरे को सबमिट कर दिए, लेकिन आप मॉडल आंसर पढ़ ही नहीं रहे. बहुत गलत कर रहे हैं. पढ़ना तो पड़ेगा ना मॉडल आंसर, व्हाट दे आर सेइंग, हाउ दे आर राइटिंग, व्हाट एक्स्ट्रा पॉइंट दे हैव रिटन व्हिच आई कैन राइट, समबडी हैज रिटन बेटर देन मी, उसका पढ़ें. उसके बाद आपको क्वेश्चन होएगा, सर ये लोग ऐसा लिखे हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, गलत है क्या? वो बोलेंगे ना कि ये क्वेश्चन का आंसर हम चेक करें कि 15,500 गुडविल है कि नहीं. समझ में नहीं आ रहा है यार. और मान लो कोई नया होता तो भी बात, ये तो सेम क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम लोग क्लास में 2.5 घंटा सॉल्व किए. अभी क्या बताए, क्या समझे, मैंने समझ में नहीं आता. देन ही विल बी सेइंग टुमारो, यस यस सर. अरे व्हाट यस यार. somebody saying that just now message me कि sir when we do the recordings then we cannot open the Excel or Word file when the videos are running, the screen is locked. So if I will buy another computer or laptop, can I open in that computer Word or Excel? What should I reply to that person? You all see कि वो मैसेज कर रहा है कि मेरे को जब वीडियो देखते हैं तो मेरे को वर्ड एक्सेल ये सब कुछ वर्किंग करना है, खोलने नहीं मिलता है. तो मैं एक दूसरा लैपटॉप या खरोल रहा हूं और उस लैपटॉप में मैं अगर वर्ड एक्सेल खोलूंगा तो खुलने मिलेगा क्या? व्हाट शुड आई रिप्लाई टू दैट पर्सन? क्या भाई प्रीतम, व्हाट शुड आई रिप्लाई? Arey, you understand, I have 3 machines here. In one machine I am doing this. In another machine I can open Word Excel. Is this the question to ask? You understand, sir? क्या बोलेगा सर? तो कभी कभी समझ में आता है कि हम पागल हो गया कि माने कहां से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार. We are saying that when the students is doing the recordings, then since the video can be copied and can be shared with others, so it's not that I can do for you. The software has been paid in such a way. Once the video start, screen lock and keyboard lock. When the video is running, you can't do anything on that screen. So sometimes when the students say that I want to work, then you can start the video on mobile phone,
and you can do working Excel or Word in your computer. But I always say this is not required. This should not be done. Reason being that कि suppose अभी हम क्लास में आप लोग को कुछ लिखने का मन कर रहा है. Do you want to write something in the class when I am teaching, when you are doing the live class? क्या? Forget about this. ये तो लिखना ही नहीं है. मान लीजिए हम कंसोलिडेशन भी पढ़ा रहे हैं. I am preparing a balance sheet. How many of you think that at that time you are thinking to write something? क्या भाई? Normally I am asking because we need to improve our systems if there is something required. The best is to listen to you because that's important to gain the knowledge. Yeah. I mean to say that कि suppose I am taking a live class. And after the live class, I said all of you will not get recording. आपको recording मिलेगा नहीं. Then you will be very much concerned that you will forget whatever sir is saying. Then your tension increases. How I will refer the same thing again. Then in that case, obviously, I will be telling in the class कि भाई recording नहीं मिलेगा, मैं रुक जाता हूं, आप लोग को जो लिखना है लिख लीजिए. You write that because you will not be getting recordings. So what I am saying that whatever I am teaching in the class, maybe in the classroom also, then whatever need to be written, I am writing on the board. I am writing on the seat. I am writing. I am preparing notes for all the classes in advance for all of you. During the class also, I go on writing something in the class wherever it is required. And then the entire recording with the class slides, with the notes given to you. You can open the recording again. When you have done the live class, you should be opening the recording. During recording, you should not write anything. You should again follow the live class feeling in the recording class. When the recording is done, then you do the same thing which we have done in the class. When you are doing the same thing again, then you are not memorizing. Then you are analyzing your concepts when you have done twice. But if during the class you start writing something, that means you want to mug up. And my life experience is that we cannot be passing any exam or cannot be getting confidence in any exam if we are interested in mugging up the concept. अगर आप चीज को याद करेंगे, कितना याद करेंगे? दिमाग बहुत छोटा है, very small brain. Its RAM is greater than computer, but then it's a very small brain. You can't mug up anything. Single line भी आप जिंदगी में याद नहीं कर सकते, ये बात समझ लेने का. तो when during the recording or during the live class, if you are writing something, that means you want to mug up. And mugging up will never give any good feeling. तो जब आप दो बार कर लिए, लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों, आप अपने आप जब करेंगे, आप उसको समझ रहे हैं कि नाउ आई कैन रिप्रोड्यूस दैट, नॉट इन द सेम लैंग्वेज, not in the same comma full stop, but you are writing the same thing which we have done in the class, then in that case you are understanding your concepts. When you have written the same thing, you refer the class slides and all that, you will find you are doing some mistakes. Those mistakes area are tricky for you. So those mistakes area you need to make your own notes. What notes? You cannot copy this from here to your notes. No. What you are getting difficult, you are facing difficulty, you have understood that in a proper way. You need to write that thing properly in your notes. Ki I have understood this. This was the question. This is I have understood that. Then some extra questions which we have not done in the class. Maybe it's SEMA or any course. Extra question you will be practicing. When extra question you practice, follow the time rule. One question, 10 marks, 15 marks, this much time I need to complete with it. Because now you have studied the chapter. So the extra questions you should be able to do on your own in the given time. While doing some extra questions, after doing the question, you need to see the model answers, analyze. Some doubts are there, you ask in the class. And out of the additional question, if some questions are tricky, you understood, but you want to revise them again, then put the question screenshot, answer screenshot, your understanding there in your notes. So later on when you revise, you don't need to refer anything, Kaplan, BPP, Saraf notes, any video or anything. Your notes are ready. Because revision, if one topic you are taking 5 hours to complete, revision should be done in half an hour, 1 hour. And that revision you can do only by your own notes. Which area you need to read, which area, which question you need to solve again, that you will be able to do through your own notes only. Because every time you cannot do 5 hours study for revision purpose. That's not allowed, not possible also.
That, according to me, is the best way to study. Somebody will say that, sir, this is not best. Do this for 2 classes. Do this for just one or 2 classes, few topics. You will realize the difference. I have done so many mistakes in my life. Many. पढ़ने के टाइम पे जो गलतियां क्या मेरे को दिखता है कि मैं वो गलती क्यों करता था. So that I want to communicate in the class. तो स्टूडेंट अगर उसको मानेगा, नहीं ठीक लगेगा, अपना करना ना, कोई बात नहीं. It's not that any force is applied on you that you have to study like this. But whatever I am saying, you just follow. Let's see whether the results are coming or not. Let's see whether you are not feeling comfortable or not. एग्जाम है, पेपर तो लेंदी होएगा ही. नॉट सीमा, एनी क्वेश्चन, एनी पेपर. आप कोई भी एसीसीए का स्टूडेंट से पूछ लीजिए, एसबीआर, एएफएम, कोई भी मजाल है बोल दे कि पेपर वाज छोटा था, ये लेंदी था सर, हो ही नहीं रहा था, टाइम ही नहीं मिला. दैट्स नॉर्मल. सो दिस इज नॉट ओनली सीमा एग्जाम. इन एवरी एग्जाम पेपर्स आर लेंदी. हम लोगों को उसी टाइम पे कंप्लीट करना है. तो वैसा सोचना होएगा ना, वैसा करने के टाइम पे, आंसर करने के टाइम पे बार बार वो दिमाग को वहां ले जाना होएगा. सीधा एग्जाम में बैठकर टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता. नोबडी. वन ऑफ द चैंपियन इन दिस अर्थ कैन नॉट डू. अगर वो 2-3-4 मॉक पेपर्स एग्जैक्टली टाइम बाउंड, एग्जैक्टली द वे द एग्जाम विल बी देयर, वैसे अपने आप को तैयार नहीं करेगा. Mock paper is not just for how much you are able to produce. Mock paper is also for time management. How can you manage time in the exam? आप उसके लिए तैयार रहेंगे तब तो आप परफॉर्म करेंगे ना, नहीं तो कैसे करेंगे. सो मैंने जब आपका ये आंसर, यस टेल मी. Sir, actually, what you are saying is totally correct, but okay, in my case, like, you know, when you are at the job, most of the time, you know, we are doing cut and paste. Only, you know, we are even sometimes, if there's a technical thing, we go for a manual and SOP. Like first time in my life, you know, I have attempted these 2. And before attempting these 2, I have prepared my major points, 1, 2, 3, and then I develop. So basically our memories, they are very much attached with that. We never wrote 2-3 pages in a stretch. That's the big difficulty. So what is the solution for this, sir? That's okay. Sir, actually what I understood this, and thanks God and thank you very much that at least we have cleared the concept. Now if someone is telling about disease or everything, we are more confident. But now the question is that how to reproduce this on the paper. And now 10 days are left, sir, maximum. We are already standing on 8th, 7th, and on 18th, 19th, or whatever the exams are there. So we are standing 10 days back. We have to come up in those 10 days. We have to follow what we can do in exam. If we don't follow those process, then in the exam, the performance cannot be good. Failing or passing the exam is not the end result of life. Just that it gives demotivation in our mind, brain, in our life. If you are not passing the exam, you will be very sad. And now you will not be behaving properly with your family members, with your colleagues in the office. Your efficiency will go down. You will be always thinking why I failed and all that. That put a adverse effect on our life. And when we pass the exam, we are very happy. We want to conquer the world. We want to behave with everybody very happily. Then in that case, what happens that everything good. So for that reason, exam is not that it is going to give us a lottery, but then it will give that positive feeling. And for exam, we need to become a student. Maybe in the practical life, you have all the research, you have the chat GPT, Google, you have so many things which you can copy, paste, and that's the practical life, the way we work. But in exam, you need to become a student. Okay, you are also a student. I have a question. Yes. Okay, sir, I have seen that mock test that you sent to me. Suppose you are marking on the paragraph basis. Like for one paragraph, you mentioned 2 marks, 1 mark, 3 marks, like that. I can see that maximum 2 marks are there. So, is this the same way that SEMA Institute is marking a number on the paragraph basis, or they are applying some different technique? There are 2 ways to do the marking. जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, जब हम लोग फर्स्ट किए, जब आप लोगों ने कोई एक आंसर लिखा था कोर एरिया ए का, तो एग्जामिनर पहले आपका पूरा आंसर पढ़ता है, पूरा, कोई मार्किंग नहीं देता,
और आपके आंसर को कैटेगराइज करता है कि आप कौन से लेवल में हैं। तो आप देखेंगे कि जितना भी आंसर है, इंस्टीट्यूट क्या बोल रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट ने टेबल दिया है कि आपका आंसर लेवल 1 में फॉल कर रहा है, लेवल 2 में है कि लेवल 3 में। लेवल 1 मतलब आपका आंसर बहुत ही खराब है, आपका जो क्वेश्चन का मार्क्स है उसका 1/3 के अंदर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। लेवल 2 मतलब आपका आंसर 1/3 से बेटर है लेकिन एकदम हाई लेवल पे नहीं है। और लेवल 3 मतलब आपका आंसर फैंटास्टिक है, आपको 2/3 से भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग पूरा का पूरा आंसर पढ़ के पहले अपना व्यू बनाते हैं कि वो आंसर कौन से लेवल में फॉल कर रहा है। ये व्यू मेरा, आपका, सुपर्णा का, तजामुल का, सबका एक ही रहेगा। ये व्यू अगर गलत हो रहा है इसका मतलब वो पर्सन को एग्जाम का पेपर चेक करना नहीं आता है। अगर मैं कोई आंसर को पढ़ के बोलूंगा कि ये लेवल 1 है और आप बोलोगे लेवल 2 है, तो मेरे या आप में से कोई एक में माथा उठा खराब है। जो लेवल आंसर का एक एग्जामिनर बोलेगा, दूसरा एग्जामिनर भी वही लेवल बोलने वाला है। अब आता है उसके अंदर मार्किंग। अगर लेवल 1 बोले तो सपोज आई एम गिविंग मार्क्स आउट ऑफ 15 3 मार्क्स, लेकिन आप आउट ऑफ 15 4 मार्क्स दे रहे हैं, कोई और उसमें आउट ऑफ 15 2 मार्क्स दे रहे हैं, ये सब्जेक्टिविटी रहेगा, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। लेवल 1 के अंदर 1 से 5 के अंदर 3 4 1 2 इधर उधर रहेगा, इसको वी कांट ब्रेक डाउन। अब अगर एग्जामिनर को आपका 3 या 4 पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उन सब के ऊपर मिलाकर नंबर देना है और वो आपने लेवल 1 बोला है, तो हो सकता है वो आपको 4 नंबर एक साथ दे दे, हो सकता है वो 3 दे दे, या हो सकता है वो अलग अलग पैराग्राफ को बेसिस पे जाकर जिस पैराग्राफ में राइट अप उसको थोड़ा बहुत ठीक लगा वहां पर वो 2 नंबर देगा, जहां ठीक नहीं लगा वहां 1 नंबर देगा, जहां नहीं ठीक लगा वहां कुछ नंबर नहीं देगा, लेकिन टोटल में मिला के नंबर 1 से 5 के बीच में ही आएगा। तो मैंने जब आप लोग को नंबर दिया तो सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या लिख कर दिया कि भाई आपका आंसर कौन से रेंज में आ रहा है, मैंने सबसे पहले यही लिखा है, रेड भी किया है, योर आंसर कम्स इन लोअर रेंज। मैंने सुपर्णा का ये चौथा क्वेश्चन का लोअर रेंज मतलब 1 से 5 के अंदर, मतलब टोटल 25 नंबर में 1/3 कितना होता है 8 नंबर के अंदर उनका मार्क्स आएगा। यू आर राइटिंग टेक्निकली रॉन्ग ऑल द बेंच मार्किंग। इन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो कॉस्ट ड्राइवर इज नॉट करेक्टली रिटन, बिकॉज वो ड्राइवर को समझते नहीं होंगे तो इसीलिए वो कुछ भी लिख रहे हैं। तो नॉर्मली मैंने उनको पहले ही बता दिया कि मैं आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन को लोअर मार्किंग में ले जा रहा हूं। तो लोअर मार्किंग में टोटल में मैंने 25 में 6 नंबर दिया है, हो सकता है 25 में 7 मिल जाए, हो सकता है 25 में 5 मिल जाए, लेकिन 25 में 8 से ज्यादा नहीं मिलेगा। और ये लोअर रेंज क्यों गया, बिकॉज सारा जगह गलती लिखा हुआ है। तो गलत लिखा हुआ है तो इन दैट केस आपका रेंज कभी भी हायर लेवल पे नहीं जा सकता। वो लोग क्या बोल रहे हैं, जेनेरिक डिस्कशन ऑफ की फीचर्स विदाउट रेफरेंस टू द सिनेरियो, reasonable knowledge of key features, challenges faced and suggested action, some limited explanation of the scenario, good explanation of key features, challenges faced। अब है तो ये इंग्लिश ही, लेकिन आपको तो ये क्रिटिकल बनना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है, सिनेरियो क्या है, इसका मॉडल आंसर क्या है, इसके लिए क्या आंसर किस तरह से लिखा जाना चाहिए। मैं चेक कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास मॉडल आंसर है। एग्जाम में भी तो आपका आंसर जो चेक करेगा टीचर, मॉडल आंसर पहले तैयार किया जाएगा। मॉडल आंसर एक आदमी तैयार नहीं करता है, मॉडल आंसर 10-15 टीचर की टीम होती है, वो सबको ही मिलकर 5-10 दिन मिलकर मॉडल आंसर तैयार करते हैं। मॉडल आंसर में वो लोग सारी किताबें रेफर करते हैं, E2, P2, F2, गूगल, चैट, जो रेफर करना है, उसके बाद मॉडल आंसर लिखा जाता है। जो आपको मिला है वो सारे, जैसे तजामुल ने बोला इन प्रैक्टिकल लाइफ वी आर डूइंग कॉपी पेस्ट, दे हैव डन कॉपी पेस्ट। तो आप उसका आंसर कैसे लिख दोगे यार, कैसे लिख दोगे आप, नहीं लिख सकते ना। लेकिन वो मॉडल आंसर को बेस करके स्टूडेंट को मार्किंग दिया जाता है कि उसने पॉइंट्स कवर किया कि नहीं किया, उसने सिनेरियो को यूज किया कि नहीं किया, उसने पैराग्राफ वाइज आंसर दिया कि नहीं किया, उसका लेंथ सही है कि नहीं है, उसके पॉइंट्स मोटा मोटी एरियाज को कवर कर रहे हैं कि नहीं है, उसके बेसिस पे नंबर होगा। थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही सकता है यार। मैंने आपको 48 दिया, आपका 50 आ सकता है, 45 आ सकता है, 2-4 नंबर इधर उधर रहेगा, यू कांट क्वेश्चन।
दैट इज कॉल्ड गुड लक बैड लक यू कैन से। बट पैराग्राफ वाइज नंबर देना है कि आपको पूरा के ऊपर नंबर देना है, आपके ऊपर है सर। रेंज डिसाइड करके आपको नंबर देना है। बात समझ में आई साजिद जी? ये चीज सीमा के वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ये चीज जो मैंने फर्स्ट क्लास कराया था शुरू की 1 आवर 1.5 आवर, तो मैंने एक स्टूडेंट का आंसर रीड किया था। स्टूडेंट का आंसर मतलब इंस्टीट्यूट ने एक स्टूडेंट का कॉपी का इवैल्यूएशन करके सामने सामने दिया है, तो इंस्टीट्यूट ने उसका बार बार बगल में सब कुछ लिखा है। मैंने दिखाया था, मैं बोला कि अब नॉर्मली आप बोलेंगे फिर भेज दूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का गाइडलाइंस हम लोग कैसे समझ में आएगा, इंस्टीट्यूट ही बोलेगा ना। तो उन्होंने एक स्टूडेंट का आंसर का कॉपी लिया और उसको पूरी क्रिटिकल मार्किंग जैसे वो लोग करते हैं वो सामने लिखा कि इसमें इसको नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये गलती है, यहां नंबर कट गया, यहां बेसी मिला। हम लोग उसको ही फॉलो कर रहे हैं। आप मेरे को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे ही मन गढ़ंत लिखकर दिखाएंगे, उसका मार्किंग करना थोड़ा मुश्किल है। मेरे को चाहिए कि इंस्टीट्यूट का मॉडल आंसर क्या है, मार्किंग गाइडलाइंस क्या है। कोई भी टेस्ट जो हम लोग क्लास में लेते हैं, ACCA, सीमा, CMA, CPA, कोई भी कोर्स, सारा इंस्टीट्यूट से रिसोर्सेस जो मिलता है उसी के बेसिस पे लेते हैं। अपने इंडियन CA वगैरह पढ़ाते थे, तो इंडियन CA इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर निकालता है, मॉडल आंसर निकालता है, मार्किंग गाइडलाइंस निकालता है, उसी के बेसिस पे मॉक टेस्ट होता है। बिकॉज हम टीचर ये मानते हैं जो इंस्टीट्यूट बोला है वो हमें करना है, हमें क्लास में वो करवाना है, जो उनका गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। बिकॉज एग्जाम है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चीज का सॉल्यूशन आप 4 तरह से निकाल सकते हैं। एग्जाम के लिए तो स्टूडेंट को एग्जाम का प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। आपके मन में साजिद जी क्वेश्चन क्यों आ रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि आप आंसर लिखे ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट कोर एरिया ABCDE और सारा मॉक टेस्ट कोई आंसर नहीं लिखा, ये थोड़ी ना कि वहां स्टूडेंट बेवकूफ है, बुद्धिमान नहीं है, समझ में नहीं आता, बस इतना श्योर है वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। क्यों नहीं पास कर सकता? क्योंकि वो एग्जाम के लिए स्टूडेंट बना ही नहीं, वो एग्जाम पर्पस के लिए स्टूडेंट नहीं बन पाया, इसलिए वो एग्जाम नहीं पास करेगा। सीधा बात है सर। तो मेरे को क्लास में जब एग्जाम आता है, एग्जाम फोकस, जैसे अभी मैं ACCA की क्लासेज जो मंडे वेडनेसडे मॉर्निंग होती है, मैं एग्जाम फोकस नहीं पढ़ा रहा। अभी 20 तारीख के बाद चालू करेंगे, 20 मई के बाद उनको एग्जाम फोकस स्टडी कराएंगे। आपके लिए एग्जाम फोकस स्टडी चल रहा है। स्टूडेंट बनना होगा एग्जाम पास करने के लिए। ये नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है, ऑफिस में काम है, ये है, नहीं चलेगा। बिकॉज फिर रेडी रहना है कि वी कांट पास द एग्जाम, नॉट बिकॉज वी डोंट हैव ब्रेन, नॉट बिकॉज की दिमाग नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हमने एफर्ट्स पुट नहीं किया। नहीं एफर्ट्स पुट करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, सिंपल बात है। ठीक है सर। अभी आगे हम लोग को आज क्या करना है, आप लोगों को सबको 3 घंटा मेरे को अभी दे देना है, बाद में नहीं। बिकॉज फिर से मान लीजिए मैं पेपर दूंगा, आप उसको 3 घंटे में 45 मिनट्स एक एक आप कर रहे हैं कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है। एक बार मैं तो वैसे टेस्ट लूं कि मैं आपको अभी पहला क्वेश्चन मेल करूंगा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, आप उसका आंसर 45 मिनट्स में लिखकर मेल करेंगे। फिर मैं आपको 45 मिनट्स बाद दूसरा क्वेश्चन दूंगा, फिर आप उसको नेक्स्ट 45 मिनट्स में आंसर लिखकर मेल करेंगे। बस इतना ही है, कुछ रेफर मत करिएगा, बस इतना ही। और तो मैं आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा कि मैं 3 घंटा बाद में बोल रहा हूं, या मैं चारों क्वेश्चन एक साथ दे ही नहीं रहा। मैं 45 मिनट्स के गैप में ही आपको एक एक क्वेश्चन दूंगा और आपको उसका आंसर 45 मिनट्स के अंदर सबमिट करते जाना है। घर पे एक बार कोई भी जन फैमिली मेंबर है बोल दीजिए अभी मेरा एग्जाम है, 3 घंटे मेरे को डिस्टर्ब मत करना। आप अपना रूम बंद रखिए या जहां भी अकेले आ जाइए और 3 घंटा एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। बस रेफर कुछ मत करिएगा, अदर देन द प्रीसीन मटेरियल डोंट रेफर एनीथिंग, बी जेन्युइन। मान लीजिए आप खराब लिखोगे, यार पता तो चला ना कि 45 मिनट्स में क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट तो बने ना एक बार, कितना लिख रहे हैं, प्रॉपरली लिखा कि नहीं, क्या मेरा वीक एरियाज है। उसके बाद उस पर वर्क करेंगे 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर एक और मॉक पेपर करेंगे ऐसे ही। लेकिन एक बार तो क्लास में ऐसा आपको मॉडरेशन दिया जाए कि आपको 45 मिनट्स के अंदर ही एक एक आंसर लिखना है जो एग्जाम में करना पड़ेगा। क्या सब लोग इसके लिए तैयार है? एवरीबडी इज रेडी?
नहीं भी तैयार है तो हाँ बोलना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो हम थोड़ी ना 4 दिन बात करेंगे. So I am mailing to all of you. It is 12:05. 12:05. मैं आपको मेल कर रहा हूं. ड्राफ्ट में सब मेल डाला हुआ है सबका लेकर. फर्स्ट क्वेश्चन गॉन, फर्स्ट वाला गया. 12.05 पे गया है. 45 मिनट्स मीन्स 12:50. 12:50 के अंदर आपको आंसर मेल करना है. कहां मेल करना है? जो हमारा मेल आईडी है जिसमें गया उसी के नीचे रिप्लाई करना है. जब 12:50 होगा 2 मिनट पहले मैं दूसरा क्वेश्चन मेल कर चुका हूंगा आपको. फिर से 45 मिनट्स बाय 1:35 आपको उसको सबमिट करना है. ऐसे करके चारों आंसर आप 3 घंटे में 1 बाय 1 सबमिट करेंगे. कुछ रेफर नहीं करेंगे, बस केवल प्री सीन मटेरियल आप खोल के देख सकते हैं आंसर लिखने के टाइम पे. जेन्युइन, बी स्टूडेंट. तजामुल एंड साजिद, अगर हम स्टूडेंट बनेंगे हम पास हो जाएंगे यार. एग्जाम है, स्टूडेंट तो बनना पड़ेगा ना. व्हाट कैन वी सो, मे बी वी आर प्रैक्टिकली वेरी स्ट्रांग, बट एग्जामिनर को चाहिए कि आप कॉपी में क्या लिख रहे हैं. ठीक है, तो आपको कोई को क्लास में रहने की जरूरत नहीं है. यू कैन लीव, आई एम ऑल्सो लीविंग, बट यू विल गो ऑन गेटिंग 45 मिनट्स के अंतराल में क्वेश्चन 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 एंड सबमिट द आंसर. यू आर बाउंड टू परफॉर्म द वे एग्जाम विल बी देयर. तो क्या कम से कम एक बार तो स्टूडेंट बने. आगे देखते हैं क्या होता है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द डाउट्स. और इसके अलावा मैं एक और मॉक पेपर दूंगा आप लोग को. पहले ये कर लेते हैं, देन आई विल कम्युनिकेट. ओके, ठीक है. टाटा, बाय बाय बाय, थैंक यू.